Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a computer science gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. Top down, top down approach of matrix multiplication. See, it is going to be a small session. Okay, because we have almost seen the bottom up approach. Just we are going to see top down approach, then we will see the code of top down approach. Okay, and so this should be closed here. See one previous year gate question on matrix multiplication. ठीक है ना? चलिए, सो अब हम लोग शुरू करते हैं टॉप डाउन अप्रोच. सो हमने बॉटम अप अप्रोच देखे. टॉप डाउन अप्रोच में क्या रहता है, तो लिख लेते हैं हम, पहले हेडिंग दे देते हैं. टॉप डाउन डायनेमिक, टॉप डाउन डायनेमिक अप्रोच, टॉप डाउन डायनेमिक अप्रोच. इसे हम, और एक नाम है जो हम कहते हैं मिमोजाइजेशन. मिमोजाइजेशन, ठीक है. तो दोनों नाम सेम है, दोनों नाम सेम है, ठीक है. तो दोनों का मतलब एक ही होता है, टॉप डाउन अप्रोच और मिमोजाइजेशन, ठीक है. सो टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, टॉप डाउन में हम क्या करेंगे, पहले इसमें क्या होता है, फंक्शन कॉल होगी. इसमें फंक्शंस रहेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे. तो उसमें बॉटम अप में हम देखें कि हमें फंक्शन कॉल की जरूरत ही नहीं पड़े, हम डायरेक्ट टेबल से कर लेंगे. लेकिन इसमें क्या हम फंक्शन कॉल करते हैं. तो आपने देखे थे कि आप बोलेंगे सर 2 to the power n फंक्शन थे हमारे. आप तो देखे थे कि 2 to the power n, हाँ, रिकरेंस फंक्शन सॉल्यूशन रहेगा. तो आपने देखा कि सर 2 to the power n फंक्शन थे हमारे पास. तो मैं 2 to the power n फंक्शन अगर कॉल करूंगा और हर एक के लिए अगर एक कांस्टेंट टाइम लगेगा, तो ये तो बिग ऑफ 2 to the power n हो जाएगा. बिग ऑफ 2 to the power n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. But it is not the case. Why? Because you know that 2 to the power n is going to be the number of function call is there. But unique function call is going to be n square. यूनिक फंक्शन कॉल तो n स्क्वायर ही रहेंगे ना. तो रिकर्शन कॉल करेंगे विद टेबल, यहाँ रिकर्शन कॉल भी रहेगा, टेबल भी रहेगा. तो आपकी यूनिक फंक्शन कॉल कितने हैं, n स्क्वायर. यूनिक फंक्शन कॉल कितने, n स्क्वायर. जैसे आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जैसे m14 कर रहे हैं, तो जैसे हमने टेबल में करते थे 1 1 पहले से कैलकुलेट कर लिए होते, 2 2 पहले से कर लिए होते. तो जब 1 4 कॉल करेंगे और उसमें जब देखेंगे कि 1 1 है, तो 1 1 को फिर दोबारा कॉल नहीं करेंगे. हम टेबल में देखेंगे कि अगर मैं इसका वैल्यू पहले से कैलकुलेट करके रखा हूं, तो फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, यहीं से वैल्यू ले लेंगे, यहीं से वैल्यू ले लेंगे. देखिए क्लियर है कि नहीं, बताइएगा. समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा. वेनेवर, देखिए डाउट होगा तो लिख लीजिएगा, बोल दीजिएगा. चलिए इसका नोट्स लिख लीजिए तब. सो we call whenever we call any node, क्लियर है. चलिए, whenever we call any node or any function, node means function है, we will check, we will check, we will check before calling, before calling the function, the function, the function, whatever the function, the function, कहाँ थे, the function, whether the function, whether the function, whether the function, whether that value, whether that value is already present, is already present in the table. जो टेबल हम लोग यूज करते हैं, टेबल और नॉट, टेबल में है कि नहीं है. अगर टेबल में नहीं रहेगा तो हम कॉल करेंगे. इफ द वैल्यू, if the value is already, अगर वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, if the value already present, the value already present in the table, we will directly take, टेबल से ही ले लेंगे. we will simply, we will simply, we will simply use that table, we will simply use that value, वही वैल्यू यूज करेंगे, simply use that value. And
and if the value is not present, and if the value is not present, then only we are then only we are going to call a function. चलिए, सो दोनों में फंक्शन कॉल कितने हो रहे थे आपके n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। सो बोथ इज गोइंग टू हैव ए n इंटू एन फंक्शन कॉल एंड यू, और दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, जितने नंबर ऑफ टेबल्स रहेंगे बॉटम अप में, जितने नंबर ऑफ टेबल्स रहेंगे, नंबर ऑफ टेबल्स कितने थे n स्क्वायर, उतना ही फंक्शन कॉल होगा, उतना ही फंक्शन कॉल होगा। लिख लीजिए, बोथ दी टॉप डाउन, दोनों सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, बोथ दी टॉप डाउन, both the top down method and bottom up method are going to table size n square, हाँ table size n square होगा, are going to use the same unique function। क्या होगा, यूनिक फंक्शन सेम होगा, इसको पॉइंट 2 कर दीजिए, वो पहला पॉइंट हो गया। सेम यूनिक फंक्शन प्रॉब्लम को यूज करेंगे, दोनों में प्रॉब्लम जो रहेगा यूनिक प्रॉब्लम सेम ही रहेंगे। if there are n into n plus 1 हम देखे थे, नंबर ऑफ यूनिक प्रॉब्लम थे, यूनिक प्रॉब्लम, there are that many unique problem if there are n into n plus 1 unique problem in tabular method किसको बोलते हैं हम लोग, बॉटम अप, ठीक है। टेबुलर मेथड हम बॉटम अप को बोलते हैं, टेबुलर मेथड। then we will have those many function, then we will have those many function call in the, then we will have those many function call। so if there are n into n plus 1 by 2 unique problem in the tabular method, अगर tabular method में इतने ही प्रॉब्लम है, then we will have those many function call in, उतने ही फंक्शन कॉल क्या होगी, इन टॉप डाउन मेथड। तो जितने प्रॉब्लम्स हमारे, जितना टेबल्स वहां पे है, उतने ही फंक्शन कॉल यहाँ पे होंगे यूनिक, ठीक है, और यूनिक ही हम कॉल करेंगे। तो बेसिक सिमिलरिटीज क्या है, नोट करके लिख लीजिए, दोनों में बेसिक सिमिलरिटी क्या है, दूसरा स्लाइड में लिखा देते हैं, हो गया होगा तो डन कर दीजिएगा, डी फॉर डन। आप लिख लीजिए दोनों में सिमिलरिटी क्या है। अगर आपसे कभी पूछे कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो आपको कहना क्या रहेगा कि द बेसिक सिमिलरिटी, बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे हम लोग। द बेसिक सिमिलरिटी इज द नंबर ऑफ फंक्शन कॉल, जितने नंबर ऑफ फंक्शन कॉल होंगे, द नंबर ऑफ फंक्शन कॉल इन टॉप डाउन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, and the number of cells, ठीक है, सेल और सेल्स लिख लीजिए, ये वाला एस वाला लिख लीजिए, सेल्स इन बॉटम क्या हो गया, इन बॉटम अप लिखा क्यों नहीं रहा है, तो एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन बॉटम अप आर गोइंग टू बी सेम, ये है हमारा सिमिलरिटी दोनों। अब हम लोग कोड देखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम वही रहेंगे जो आई जे आप देख रहे हैं ना, जैसे उसी तरह ही रहेंगे। वहां पे क्या टेबल लगता है, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आपका मैं कोड करता हूँ, ये क्या है, टॉप डाउन आपका है। क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वल टू पी डॉट लेंथ माइनस हो। तो पी क्या था, पी हमारा मैट्रिक्स था जिसका साइज क्या था, पी क्या कंटेन कर रहा था, बताइए, पी में बताया था, पी क्या है यहाँ पे,
तो P यहाँ है सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस। P क्या है यहाँ पे? P इज ए सीक्वेंस ऑफ डायमेंशन। सीक्वेंस ऑफ डायमेंशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। सीक्वेंस ऑफ ऑल डायमेंशन जो मैट्रिसेस आपका है। हाँ, देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच हमने देख लिए, ये टॉप डाउन अप्रोच है। दोनों अप्रोच ही पॉपुलर है, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए P क्या है हमारा? सीक्वेंस ऑफ ऑल डायमेंशन है, में डायमेंशन रहेंगे। और N क्या है हमारा? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे उधर था, यहाँ पे P क्या होगा? जैसे चार मैट्रिक्स है तो P0 P1 एक का रहा, फिर एक का P1 P2 रहेगा, दूसरा का P2 P3 रहेगा, फिर तीसरा का P3 P4 रहेगा। तो यूनिक वाला जो P एक मैट्रिक्स रहेगा उसमें P0 P1 P2 P3 और P4 रहेंगे, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स हो गया P, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? लेट m इक्वल टू 1 टू ये आपका किस लिए है बताइए? मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पता करनी है। एम किस लिए? मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कितना मिनिमम स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो पता करने के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम सारा 1 1 1 2 सारे को, फॉर आई इक्वल टू 1 टू जे इक्वल टू एन, आई इक्वल टू एन और जे इक्वल टू 1 टू एन, सारे जगह पे मैं इन्फिनिटी रख रहा हूँ, सारे जगह पे मैं इन्फिनिटी कर रहा हूँ। हाँ, सारे जगह में, पहले सारे जगह में इन्फिनिटी इसलिए रख रहे हैं कि जब इन्फिनिटी रहेगा तो इसका मतलब क्या है? मैंने उसे कॉल ही नहीं किया। अगर जब किसी वैल्यू का, जैसे M14 में कॉल कर रहा हूं, मैं देखा कि इन्फिनिटी है, मतलब क्या है कि मैंने इसको कॉल नहीं किया। इन्फिनिटी हम ये क्यों यूज करें? ये लाइन हमको बताता है कि अगर इन्फिनिटी है तो मैं उसको पहली बार कॉल कर रहा हूँ। अगर इन्फिनिटी नहीं है, कुछ वैल्यू है जैसे 10 है, इसका मैं बोलता हूँ कि 1 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन 10 लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये, अब फिर अगर फिर दोबारा आप कॉल कर रहे हो एक M14, तो आप इसको दोबारा नहीं कॉल करेंगे, आप इसको दोबारा कॉल नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है। देखिए हमें क्या है, हमें टेबल में हमें पता करना रहेगा ना कि उसे मैं पहली बार कॉल कर रहा हूँ कि दूसरी बार कॉल कर रहा हूँ। तो जब जब उसका वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब तो उसको हम पहली बार कॉल कर रहे हैं, इसलिए हम सबको किसी चीज से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, इन्फिनिटी से। फिर एक लुकअप चेन है, ये आपका एक्चुअल काम करेगा, ये आपका एक्चुअल मैट्रिक्स मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले आपने ये एम कर लिए, जो एम आपका क्या है, एम भी आप लिख लीजिए। एम इज ए यूज टू फाइंड द मिनिमम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एम क्या है? एम इज यूज टू फाइंड फाइंड मिनिमम मिनिमम स्केलर मिनिमम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मिनिमम स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए एम है, ठीक है। वो फंक्शन यहाँ पे, लुकअप चेन यहाँ पे, ठीक है, लुकअप चेन यहाँ पे मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए तो पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले एम के जितने वैल्यूज है आपके, जैसे एम का एन इंटू एन मैट्रिक्स जो बना है, एन इंटू एन मैट्रिक्स जो बना है टेबल में, एन इंटू एन, सब में आप क्या कर दिए, सब में आप इन्फिनिटी रख रहे हैं, सब में आप इन्फिनिटी रख रहे हैं, सब में आप इन्फिनिटी 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 रख रहे हैं। तो पहले अगर इन्फिनिटी है तो इसका मतलब क्या है कि ये पहली बार कॉल हो रहा है, पहली बार की इनिशियलाइजेशन हमारा क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है ना। चार 4 इंटू 4 कर देते हैं, 4 इंटू 4 कर देते हैं, सब में इन्फिनिटी है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम क्या किए, इन्फिनिटी कर दिए। फिर लुकअप को कॉल कर रहे हैं P, जो हमारा डायमेंशन है, अब 1 से n तक। अब लुकअप चेन क्या कर रहा है, ये एक्चुअल करेगा, देख रहा है। देखिए इफ एम स्मॉलर, इफ एम आई जे जो आप कॉल की, यहाँ 1 n है, अगर स्मॉलर देन इन्फिनिटी है, मतलब स्मॉलर देन इन्फिनिटी मतलब आप इसको मॉडिफाई कर चुके हो, मॉडिफाई कर चुके हो, तो इसका मतलब क्या है, आप वो वैल्यू ऑलरेडी टेबल में है, उसको दोबारा कॉल मत कीजिए, आप पहले ही उसे कॉल कर चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। देखिए ये चेक कर रहा है, ये लाइन क्या चेक कर रहा है, दिस टू लाइन check whether whether it is visited, whether it is visited for the first time or not, for the first time or not। अगर फर्स्ट टाइम है तो आगे जाएंगे, अगर फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकेंड टाइम है, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी से कम होगा ही, आप वही रिटर्न कर दीजिए,
अब ये अगर ये फॉल्स हुआ तो इधर आएंगे, इफ आई इक्वल टू जे, मतलब 1 1 2 2 3 3 है, तो क्या होगा, उसका 0 होगा। एल्स में आप अब इधर आएंगे, एल्स में इधर आएंगे, तो आप जानते हैं स्प्लिट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर 1 और आई और जे पे आप अगर कर रहे हैं कॉल, इसका अगर आई जे पे है, तो के का वैल्यू कहाँ से जा सकता है, के का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और स्मॉलर देन इक्वल टू जे माइनस 1 तक जा सकता है। जैसे अगर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो आप कहाँ कहाँ स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, तो सारे आप स्प्लिट पे देखिए वैल्यू जिसमें कम है, तो फिर आप फिर आप रिकर्शन कॉल कर दे रहे हैं, फिर लुकअप चेन कॉल कर रहे हैं एम पे, पी आई के, पी एम पी तो सेम ही है, जो मिनिमम स्केलर पता करेगा यहाँ, और पी आपका स्केलर, आई के आप कर दे रहे हैं, आप स्प्लिट करें के पे, स्प्लिट करें के पे, फिर लुकअप आप कॉल करें के प्लस वन से, ये के प्लस वन से जे तक, फिर ये दोनों का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, पी आई माइनस वन पी के इंटू पी जे। अब हर वैल्यू ऑफ आई के लिए, हर वैल्यू ऑफ के के लिए, आई टू जे माइनस वन के लिए आप लुकअप कॉल करेंगे रिकर्सिवली, और इसका कुछ वैल्यू आ जाएगा, फिर आप चेक करेंगे कि जो क्यू आया है क्या वो पहले वाला का छोटा है क्या, मतलब पहले आप जो किए वो 10 था, अब आप क्यू किए तो 5 है, हाँ छोटा है, तो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कम है ना, तो आप इसको देखेंगे या स्मॉलर, यस, देन अपडेट कर दिए, तब अपडेट कर दिए। देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए, क्लियर है कि नहीं, फंक्शन क्लियर है कि नहीं बताइए। तो इसका आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जब सबको क्लियर है तो अब हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता करेंगे। अब इसका इस तरह करके वो सारा कर देंगे, देखिए टॉप डाउन मेथड में इस तरह हुआ, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, देखिए बस इसके बाद हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, स्पेस इज बिग ऑफ एन स्क्वायर। अच्छा ठीक है, पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे आपके नंबर ऑफ यूनिक प्रॉब्लम्स है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर यूनिक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप हर बार तो कॉल नहीं करोगे ये लूप हर बार, और किसी एक बार जैसे नहीं, एन स्क्वायर नहीं होगा, हाँ यूनिक कॉल इज गोइंग टू योर एन स्क्वायर, लेकिन हर कॉल के लिए तो एन लगेगा ना, बिग ऑफ एन, जब अगर वन टू सॉरी बिग ऑफ एन होगा, जब आप इसको कॉल कर रहे हैं, जब आप इसको 1 to 4 से कॉल कर रहे हैं, 1 और 4 पे कॉल कर रहे हैं, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 1 और 4 एम अगर 1 और 4 से कॉल कर रहे हैं, तो के का वैल्यू हो गया 1 2 3, तो आप 4 - 1 तक कर रहे हैं ना, जे माइनस आई, तो 3 बार आप कर रहे हैं, 3 बार आप कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए याद कीजिए बॉटम अप अप्रोच में हम क्या करते थे, आपको जहां पे है आप तो उसके बाद ये कहाँ कहाँ आप स्प्लिट, ये लूप कितने बार चल सकता है, अप्रोक्स n-1 टाइम्स, या करेक्ट अप्रोक्स n-1 टाइम्स, तो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया इनटू n ले लेते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोटिक नोटेशन कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया इसका n क्यू, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n क्यू। क्लियर है सभी को, कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए सभी को क्लियर है मुझे लग रहा है, डाउट रहने से पूछ लेना है, ठीक है ना, डाउट रहने से पूछ लेना है। अब देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे हम लोग आते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं हम लोग, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, चलिए मैट्रिक्स बनाए तो उसके लिए तो एन स्क्वायर रहा, मैट्रिक्स बनाए तो उसके लिए एन स्क्वायर रहा, फिर तो आप यहाँ पे रिकर्शन कॉल भी कर रहे हैं, रिकर्शन कॉल भी तो कर रहे हैं ना, देखिए रिकर्शन कॉल को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, वहां पे बॉटम अप अप्रोच में कोई रिकर्शन कॉल नहीं था, तो उसमें कोई रिकर्शन कॉल के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पे तो रिकर्शन कॉल भी है, लुकअप टेबल, फिर लुकअप चेन, फिर लुकअप चेन को कॉल कर रहे हैं, फिर लुकअप चेन को कॉल कर रहे हैं, तो इस तरह करते करते एन स्क्वायर नहीं होंगे स्टैक के लिए, आप क्या जैसे आप ट्री बनाएंगे, ट्री बनाए जैसे M14 किया, आप देखिए नोटबुक देखिए, जब M14 किए, फिर M यहाँ 1 1 आया, इस तरह करते करते फिर M12 आया, तो इस तरह करते करते ही अब कहाँ तक जा सकता है, लेंथ इसका कहाँ तक जा सकता है, एन तक जा सकता है ना, एन तक जा सकता है। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, आप इसको जब आप करेंगे रिकर्शन कॉल, मैं अपने नोटबुक में बनाया था, मैं फटाफट बना देता हूँ। देखिए अगर एम आप 1 4 से आप कॉल कर रहे हैं, एम आप 1 4 से कॉल कर रहे हैं, तो आप क्या क्या किए थे, देखिए आप एम, हाँ, सो एसिम्प्टोटिक वाइज क्या हो जाएगा, अगर एम आप 1 4 से कॉल किए, तो यहाँ पे 4 ऐसे हो गया था, M 11 हो गया था, फिर M
M24 हो गया था, ठीक है, फिर M12 हुआ, फिर 34 हुआ, इस तरह करते करते ये सब सारे फिर ब्रेक हुए, सारे ब्रेक हुए। तो ब्रेक होते होते इसका अगर हाइट देखेंगे तो हाइट इसका हो जाएगा big O of n, हाइट हो जाएगा इसका big O of n। तो जो हाइट रहता है रिकर्सिव फंक्शन कॉल का वही हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है स्टैक के लिए। तब भी n-1 भी होगा भास्कर, तो भी एसिम्प्टोटिक वाइज तो n ही होगा, तो कोई उसके लिए हमें उतना नहीं सोचना चाहिए। तो आपको इसके लिए फॉर फॉर मैट्रिक्स ये लगा, एंड फॉर स्टैक बिग ऑफ एन लगा, बिकॉज हाइट ऑफ द ट्री, फॉर स्टैक बिकॉज हाइट ऑफ द ट्री, बिकॉज हाइट ऑफ द ट्री, जो भी हाइट ऑफ द ट्री होगा वही हमें स्टैक का साइज लगता है, बिकॉज हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, height of the tree is going to be big O of n, height of the tree big O of n रहेगा। तो ये एसिम्प्टोटिक वाइज तो n स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन एक्चुअली इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा है बॉटम अप अप्रोच से, सिर्फ बॉटम अप्रोच में यही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई एसिम्प्टोटिक वाइज पूछे जाए तो दोनों का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, बॉटम अप्रोच का भी और किसका, टॉप डाउन अप्रोच का, दोनों में बिग ऑफ एन स्क्वायर आ रहा है। हाइट वाला रिपीट कर दीजिए सर, देखिए हाइट वाला रिपीट कर देते हैं। देखिए आप हाइट वाला जब आप करेंगे, जब आप हाइट वाला करेंगे M14 था, अब देखिए इसको करते हैं, फिर इसका क्या था 34 हुआ, फिर इसका था 13, इस तरह करके हमने लिखे थे कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है, इस तरह करके कॉल होते जा रहा है, इस तरह करके फिर इसका कॉल हो रहा है, इसका कॉल हो रहा है M22, फिर M34, ठीक है, फिर M23, फिर M44, देखिए फिर इसका कॉल होगा 34 का M33, फिर M44, ठीक है, फिर ये होगा M22, फिर M4433, ठीक है। तो यहाँ हाइट कितना जा रहा है 0 1 2 3, या फिर इसका लेवल 0, तो यहाँ क्या हो गया वो एक हाइट 2 3, तो n-1 तक जा रहा है, यहाँ n-1 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हाइट तो इसका n-1 हो गया ना, हाइट तो इसका n-1, मतलब एसिम्प्टोटिक वाइज कितना हो गया हाइट, एसिम्प्टोटिक वाइज इस ट्री का अगर रिकर्शन कॉल आप करोगे तो हाइट कितना हो जाएगा बिग ऑफ एन। अब जब भी कोई फंक्शन कॉल, जैसे आप एफ एन कर रहे हो, एफ एन अगर कॉल कर रहा है, इफ कोई कंडीशन देते हैं और फिर एफ एन -1 को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा F3 कॉल हुआ, फिर F2 कॉल हुआ, फिर F1 कॉल हुआ, इसी तरह हम स्टैक में डालते थे ना, F3 फिर F2 फिर F1। तो जो हाइट, वो तो किसके लिए था, वो तो एवियल ट्री में है ना, ये सब हाइट ऑफ द कंप्लीट कंप्लीट ट्री में है ना, हाइट ऑफ द ट्री तो कंप्लीट ट्री में है। स्क्यू ट्री में क्या हो जाएगा, स्क्यू ट्री में तो हाइट ये हो जाएगा ना, स्क्यू ट्री में तो हाइट n हो जाएगा ना, तो कंप्लीट ट्री में था ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट और कंप्लीट ट्री में, एवियल ट्री में आप लोग का डेटा स्ट्रक्चर और सी थोड़ा मिक्स हो जा रहा है, बिग ऑफ एन होगा। ये तो बाइनरी ट्री नहीं है, ये तो बाइनरी ट्री भी नहीं है, और ऊपर से ये तो रिड्यूस होते होते 1 1 1 हुआ, 2 4 हुआ, 1 2, फिर इसको स्प्लिट किए 2 2 हुआ। हाँ स्क्यू के केस में तो बिग ऑफ एन हो जाते हैं, तो ये तो उसी तरह जा रहा है ना, स्क्यू नहीं है लेकिन ये उसी तरह तो एक एक करके तो घट रहा है ना, 1 1 हुआ, 2 2 4 हुआ, फिर ये देखिए इसका, देखिए 2 4 का क्या होगा 2 2 और 3 4, फिर 2 3 4 4, फिर इसका होगा देखिए। तो ये हाइट कहाँ चल जाएगा, हाइट तो जितना रहेगा n-1 तक जाएगा ना, देखिए कैसे n-1 तक जा रहा है, देखिए अब मैं वो समझा देता हूँ आपको। पहले तो आप सारे जगह पे स्प्लिट कर दिए, 1 पे 2 पे और 3 पे कर दिए, फिर जब 2 2 2 और 4 पे रहेगा तो दो स्प्लिट करेंगे ना, दो स्प्लिट कर दिए, फिर 3 4 पे रहेगा तो एक स्प्लिट और रहेगा ना, तो ऐसे तो n-1 तक तो स्प्लिट तो हो ही जाएगा ना। अगर आप सिर्फ ये पाथ ही कंसिडर करेंगे, ये पार्ट हर जगह देखिए 1 4 है, तो उसमें क्या आएगा, एक 2 4 आएगा, फिर 3 4 आएगा, फिर 4 4 आएगा, देखिए देखिए 1 4 आया, 2 4 आया, 3 4 आया, फिर 4 4 आया, तो इस तरह अगर मैं 1 n रहा तो ये क्या हो गया 2n आएगा, फिर क्या आएगा 3n आएगा, फिर क्या आएगा 4n आएगा, फिर क्या आएगा 5n आएगा, इस तरह करते करते कितना आ जाएगा वहां पे एन 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 एन, देखिए
देखिए देखिए 1 4 2 4 3 4 4 4 आ रहा है ना। तो ये तो पूरा हाइट चला गया ना। देखिए 1 से शुरू किए, 1 से शुरू किए, 1 2 3 4, तो क्या हो गया हाइट बिग ऑफ एन। क्लियर हो रहा है, इससे तो मुझे लग रहा होगा आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हाइट हो जाती है बिग ऑफ एन। और अब जानते हैं कि जिस तरह हम कॉल करेंगे, इसे F3 कॉल किए, फिर F2 कॉल किए, फिर F1 कॉल किए, तो जो हाइट होती है हमारी ट्री की, वही हमारा हो जाता है स्टैक के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो stack space complexity is going to your height of the tree, because height of the tree is going to be big of n, that is going to be the required of the stack space. So stack space is going to be big of n. So asymptotic wise the time complexity is going to be your big of n square. Asymptotic wise the time complexity is going to be big of n square. But actually but actually कौन सा टाइम ज्यादा ले रहा है, कौन सा स्पेस ज्यादा ले रहा है, ये ले रहा है ज्यादा। ठीक है, देखिए से asymptotic wise both both is having same same क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, बट एक्चुअली बट एक्चुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कौन सा, टॉप डाउन टॉप डाउन अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच इज मोर देन बॉटम अप अप्रोच। गेट एग्जाम में आपसे पूछे एसिम्प्टोटिक वाइज तो सेम है, तो सेम है, लेकिन एक्चुअली ज्यादा है। ठीक है, लिख लिए होंगे तो बोलिएगा। अब एक गेट का क्वेश्चन लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यू भी है, और दोनों का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, बिग ऑफ एन स्क्वायर याद रहना चाहिए आपको। ठीक है ना। अब एक गेट का क्वेश्चन लेते हैं, फिर सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो आवर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज गोइंग टू बी फिनिश। ओके, आपको जो मन है, जिस तरह मन है आप उस तरह कीजिए। ठीक है, 2011 का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए पूछा गया था, तो वो मैं एक देख लेते हैं, उसके बाद सेशन को कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन है आपका, आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूं कि अब इतना तो पढ़े हैं तो खुद से ट्राई कीजिए। ये 2 नंबर का है। मैं 4 मैट्रिसेस दिया है। M1 पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, टाइम बचेगा। 4 मैट्रिक्स दिया है, वो M1 M2 M3 M4। ओके, 4 मैट्रिक्स दिए, M1 M2 M3 M4 ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन इसका दिए हैं P इंटू क्यू, इसका डायमेंशन है P इंटू क्यू, इसका है Q इंटू आर, इसका है R इंटू एस, और इसका है S इंटू टी रेस्पेक्टिवली। कैन बी मल्टीप्लाइड इन सिवरल वे विद डिफरेंट नंबर ऑफ टोटल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ठीक है ठीक है। तो P है यहाँ पे आपका, P है आपका दे दिया है 10, Q दे दिया है आपका 100, R दे दिया है आपको 20, S दे दिया है आपको 5, और T दे दिया है आपको 80। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, जब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे M1 M2 M3 M4, तो इसका मिनिमम स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या हो। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, आप लोग मुझे बताइए इसका मिनिमम स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या हो। खुद से करना है, ठीक है ना, गूगल नहीं करना है, खुद से कीजिए, खुद से कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। तो ये आपका गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 4 मैट्रिक्स है, इसका डायमेंशन पी क्यू आर एस टी दिया गया है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या है। कोई भी मेथड यूज कीजिए, टेबल बना के करना है, डायरेक्ट करना है। 4 मैट्रिक्स है तो 5 ही लगेंगे। ठीक है, तो जो आपको सही लग रहा है आप वो यूज कीजिए। बोल रहे हैं तो सेशन को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सी करेक्ट। हाँ करेक्ट। जब आपको M1 M2 M3 4 मैट्रिक्स दिया है, तो आपको पता है आप 4 मैट्रिक्स है तो 5 तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। क्या है, एक इस तरह की। ठीक है, फिर M1, फिर इसमें आप क्या किए, M1 M2 पहले, M2 M3 की, M4 मेरा नहीं है ऐसा। ठीक है, देखिए आप टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच से कर सकते हैं, लेकिन गेट एग्जाम में जल्दी कैसे हो ना, उसके लिए मैं आपको बताते हैं आप क्या कीजिए।
उसके लिए आपको इसका डायनेमिक नहीं भी आता है तो भी चलेगा। आप कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस चारों मैट्रिक्स को लिख लीजिए। एक ये हो गया, दूसरा M1 M2 फिर M3 M4 हो गया, फिर M1 M2 हो गया, एक हुआ M1 M2, फिर M3 M4, ठीक है। फिर हो गया M1 M2, M1 को मैं इसको आप देखिए जहां जहां पैरेंथेसाइज कर सकते हैं आप सब कर दीजिए। देखिए एक ये तरीका हो सकता है, M2 M3 किए, फिर आप इसको कर दीजिए, फिर इसके साथ कीजिए। एक क्या हुआ, M2 M3 किए, फिर आप इसके साथ कर दीजिए, फिर इसको कीजिए, ठीक है। और मैंने इसके लिए बनाए थे, इंडिविजुअली करेंगे तो सही होगा। एक था ए, एक ये हो गया, फिर एक हो गया ये M1 M2, इसका कर रहे हैं ना। हम्म, ये भी हो गया, ये भी हो गया, करेक्ट, करेक्ट। ये 5 वे से आप कर सकते हैं इसको, पैरेंथेसाइजेशन 5 वे से हमने किए थे, ये याद आ रहा है। बहुत तरीका है इसको करने का, जैसे M1 M2 M3 M4 रहेगा तो आप कैसे करेंगे, आप पैरेंथेसिस यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ। तो एक बनेगा M1, फिर M2 M3 M4, ये एक हुआ। दूसरा होगा M1 M2, तो यहाँ होगा M3 M4, फिर यहाँ पे होगा M1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैं आप लोगों को वो सब पढ़ाए थे। M1 M2 M3 और M4 लिख दिए। फिर ये तीन है, तीन को आप दो प्रकार से कर सकते हैं, M1, फिर देखिए M2 M3 M4, यहाँ एक हो गया। तीन को इस तरह से किए, या फिर पहले M2 M3 को किए, फिर आप M4 को किए। ये तो दो दो है ही है, तो और फर्दर नहीं होगा, यहाँ पे दो होगा। देखिए ये क्लियर है कि नहीं सब, क्या है ना, आपको एग्जाम में जल्दी होगी, एग्जाम में जल्दी होगी। एग्जाम में आपको 4 मैट्रिक्स से ज्यादा पूछने की तो उम्मीद नहीं है। देखिए बताइएगा ये सभी को क्लियर है कि नहीं, ये सभी को क्लियर है कि नहीं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप M1 M2 को कर दिए पहले, फिर M3, फिर M, इसी 5 वे से हम पैरेंथेसाइज कर सकते हैं। हमने आपको ये शायद सेकेंड या फर्स्ट डे में आपको ये बताया था। तो आप क्या कीजिए, टाइम बचाने के लिए आप ये पांचों वे को एग्जामिन कीजिए, पांचों वे को आप एग्जामिन कीजिए, इसको एग्जामिन कीजिए कितना हो रहा है, इसको एग्जामिन कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए। और यही चीज को मैं, तो मैं M1 के टाइम्स में यहीं पे आपको बताता हूँ। M1 का मैंने डायमेंशन है यहाँ पे, इससे क्या होगा, जल्दी होगा थोड़ा। 10 × 100, M2 है आपका 100 × 20, M3 है आपका 20 × 5, और M4 है आपका 5 × 80। तो पहले M3 M4 होगा, M3 M4, तो M3 M4 करेंगे तो कितना होगा, 20 × 5 × 80, 20 × 5 × 80, तो ये क्या होगा, 100। ये हो गया 100 × 8, तो ये आपका 8000 हो गया, 8000। ये आपका 8000 हो गया।
तो इसका डायमेंशन कितना होगा, M3 M4 का डायमेंशन हो गया 20 इंटू 80, 20 इंटू 80 M2 का कितना है, 100 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 20 इंटू 80, तो ये हो गया आपका 280, ये हो गया 16, फिर ये 3 हो गया 0, 16,000। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो डायमेंशन क्या आया, 100 इंटू 80, और इसका है 10 इंटू 100। तो इसका आ रहा है आपको, अभी तक हुआ है 24,000 अभी तक हो चुका है, 24,000 अभी तक हो चुका है, प्लस करेंगे तो फिर अब यहाँ 10 इंटू 100 है, या 100 इंटू 80 है, तो 10 इंटू 100 इंटू 80, तो ये 1,000 हो गया, इंटू 80 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया नंबर, ये ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए आप क्या ना, यहीं से टाइम बचा सकते हैं, यहीं से टाइम बचा सकते हैं कि ये इतना बड़ा नंबर हो जा रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। ये कितना हो गया, 80, फिर 3 0, 80,000 हो गया, 80,000, ठीक है ना, ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे, इससे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कम नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक तरीका हुआ। दूसरा, अब इसको कीजिए, ऐसे ही कर करके आपको सबको देखना है, ऐसे कर करके आपको सबको देखना है। ये एक तरीका है। दूसरा, हम बॉटम अप अप्रोच कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। आप लोगों ने क्या किया, बॉटम अप अप्रोच किया है, टेबल बना के किया है। आप लोगों ने क्या अप्रोच यूज किया है, M2 M3 कितना होगा, M2 है, तो कर लेते हैं, M2 है आपका 100 इंटू 20, और M3 है 20, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 100, तो 100 इंटू 100 हो गया आपका 1 2 सो 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, तो ये 10,000 हो गया। तो क्या डायमेंशन आप लोग मुझे बता दीजिए, M2 M3 का क्या हो जाएगा, 100 इंटू 5, 100 इंटू 5। M4 का डायमेंशन क्या है, 5 इंटू 80, तो ये हो गया 10,000, फिर ये होगा 100 इंटू 5 इंटू 80, तो ये हो गया 500 इंटू 80, तो 8 5 जब 40, 30 40,000, प्लस 40,000, प्लस 40,000, प्लस 40,000। ठीक है, देखिएगा कहीं कोई कैलकुलेशन में अगर गलती होगी तो देखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका डायमेंशन आ गया 100 इंटू 80, 100 इंटू 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और इसको, तो 100 इंटू 80 हो जाएगा। M1 का डायमेंशन क्या है, 10 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100 इंटू 80, तो ये हो गया 8, 1 2 3 4, 4 0, मतलब 8,000, तो ये 50,000 हो गया, प्लस 8 हो गया, तो ये भी ऑप्शन में शायद नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, हाँ ये भी नहीं है। अब ये देखते हैं M1 इंटू M2, M1 इंटू M2 कहीं किए हैं, नहीं किए, M3 M4 किए, M3 M4 किए हैं, 8,000 आया था, M3 8 4 किए, और डायमेंशन इसका आया था 20 इंटू 80, 20 इंटू 80, M3 कहाँ है यहाँ, हाँ चलिए सही है। M1 M2 करते हैं, M1 M2 करेंगे तो डायमेंशन इसका आ जाएगा 10 इंटू 20, ठीक है, 10 इंटू 20 तो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2 1 2 3 4, तो 2 1 2 3, 1 मिनट, 1 मिनट कर लेते हैं हम, कहीं गलती ना हो जाए। तो ये हो गया आपका 10 इंटू 100 इंटू 20, तो ये आपका 2 0 2 3, 20,000 हो गया। तो गलती आ रहा है, कहीं गलती हुआ है क्या? अच्छा सही है, 20,000 है, ये 20,000 हो गया ये, और ठीक है 20,000 है, तो हमारा ये 20,000 हो गया।
20,000 हुआ। इसका डायमेंशन M1 M2 का कितना हो जा रहा है? M1 M2 का हो जा रहा है 10 इंटू 20, 10 इंटू 20। तो ये इंटू करेंगे हम, तो 10 इंटू 20 इंटू 80 करेंगे तो ये हो गया 16, 1 2 3 3 0, सो 16,000 हो गया ये। तो टोटल यहाँ पे हमें मिल जाएगा 16,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000, सो 8 16 24 और 20 44,000 हो गया यहाँ, 44,000। ये 44K है। 8 और यहाँ 20 और ये 16 था, तो 16 8 24 हो गया, 24 और 20 44 हो गया, 44K है। चलिए, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना सभी को? किसी को डाउट होगा तो बोलिएगा। मालिनी को भी क्लियर है? अब देखिए ये करते हैं। तो यहाँ से कोई ऑप्शन मिला है क्या अभी तक? यहाँ आपको मिला, आपको यहाँ तो बहुत ज़्यादा मिला, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे आपको कितना, यहाँ 44K मिला। 44K आपका ऑप्शन है बी में, तो है बी में है, बी में है, तो बी शायद हो सकता है, लेकिन आंसर सी है, मतलब उससे कम भी हो सकता है। ये कितना मिला आपको? 58 आपके ऑप्शन में नहीं है, 58 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं M1 M2। तो M1 M2 M3 हमने शायद किए हैं। M2 M3 हमारा कितना आया था? 10 20 एंड 5, तो 100 एंड 100, इट्स गोइंग टू 10,000। 10,000 आया था, 10,000, ये हमारा 10,000 है, तो इसको हम 10 के लिख देते हैं। देखिए M2 M3 कैसे किए? M2 है हमारा 10, 100, 20 इंटू 5, तो 100 इंटू 100, दैट इज गोइंग टू 10,000, दैट इज गोइंग टू 10K, है ना? गोइंग टू 10K। M2 M3 का डायमेंशन कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5, 100 इंटू 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 100 इंटू 5। थोड़ा ये टाइम टेकिंग है, 100, इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपको 4 मैट्रिक्स से ज्यादा पूछेंगे नहीं, 4 मैट्रिक्स से ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं। M1 का क्या है डायमेंशन? 10 इंटू 100, 10 इंटू 100। अब हमें इसे करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 100 इंटू 5, तो ये हो गया 5 एंड 40, 5 के आ गया, तो टोटल 5K आ गया। तो अभी 15K अभी हमारा हो रहा है, 15K अभी हमारा हो गया, 15K हो गया। तो डायमेंशन अभी हमारा क्या हुआ? तो डायमेंशन हमारा हुआ है यहाँ पे 10 इंटू 5, इसका डायमेंशन हो गया 10 इंटू 5। और M4 का डायमेंशन क्या है? M4 का डायमेंशन है 5 इंटू 80। सो 10 इंटू 5 इंटू 80, तो 8 5 जा 40 एंड 1 2 2 0, 4,000। तो ये हो गया +4, मतलब 19K आ गया, 19K। मिनिमम हमारा 19K ही है, इसीलिए ये वाला हमारा सही है, ये हमें 19K दे रहा है, ये हमें 19K दे रहा है मिनिमम। क्लियर है ना? ये हमें 19K दे रहा है, इसलिए हमारा ये वाला आंसर सही है। अब M1 M2 का हमारा आया था 20K, 20K। M3 है आपका 20 इंटू 5, 20 इंटू 5। M1 M2 का डायमेंशन है 10 इंटू 20, 10 इंटू 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 20 इंटू 5, तो ये हो गया 10 इंटू 100, तो ये हो गया 100। तो देखिए 21K तो ऐसे ही आ जा रहा है, मतलब ये गलत है। मतलब गलत क्या है? ये स्मॉलेस्ट नहीं है, 20K तो यहीं पे। फर्दर नहीं करेंगे, टाइम बचा लेंगे अपना। तो महेंद्र लकी थे कि पहले ही बार में उसको ये वाला मिल गया, इसलिए उनका आंसर जल्दी आ गया। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच बताना है आप लोगों को? बताइए, बॉटम अप अप्रोच बताए, इस तरह वाला ये बताना है। 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। हमारा आंसर 1 4 चाहिए, 1 4। चलिए बोलिए, बताना है तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग का गेट एग्जाम पास में है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो बता देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। 2 2, 2 3, 2 4, इस तरह करके जो हम करते थे।
3 3, ये बॉटम अप अप्रोच है, 3 4, फिर यहाँ पे क्या होगा 4 4, इसमें सब कोई का जीरो होगा, इसमें सब कोई का जीरो होगा। एक और अप्रोच है, मतलब कोई किसी ने नहीं किया है, मतलब सभी को करना है, तो ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, M1 का डायमेंशन है 10 इंटू 100, M2 का डायमेंशन है यहाँ पे 100 इंटू 20, M3 का डायमेंशन है यहाँ पे 20 इंटू 5, M4 का डायमेंशन है यहाँ पे 5 इंटू 80, 5 इंटू। M1 M2 करेंगे तो कितना होगा, 10 इंटू 100 इंटू 20, तो हो गया आपका 10 इंटू 100 इंटू 20, 2 1 2 3 4, 2 3 4, मतलब 20 के, ये हो गया आपका 20 के, ठीक है। इसी तरह 2 3 करेंगे, 2 3 करेंगे, 2 3 करेंगे अब, तो 2 3 जब करेंगे, तो 2 3 करेंगे तो 100 इंटू 20 इंटू 5, तो ये 100 इंटू 100 हो गया, तो ये हो गया 10 के, 10 के हो गया ये। अब 3 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 4, 4, 3 इंटू 4 क्या होगा, 20 इंटू 5 इंटू 80, तो दैट इज 8 5 जी 40, 8 8 के, 8 के, ठीक है। अब 1 3 करेंगे, अब 1 3 तो जब M1 3 करेंगे तो कितने जगह स्प्लिट होगा, दो जगह मिनिमम लेंगे, कहाँ कहाँ होगा, M11 और एक M12, 1 1 पे होगा तो ये कहाँ जाएगा आपका M2 2 3, और ये आपका 3 2 3, 3 2 3, फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों के आप मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 इंटू P1 इंटू P3, यहाँ हो जाएगा आपका P0 P2 P3, तो मिनिमम होगा P110 है, 2 3 आपका 10 के है, और ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 1 2 आपका क्या है, 1 2 आपका क्या है 20 के, 20 के, 3 3 क्या है आपका 3 3, 3 3 0 है। अब देखिए P0 P1 P2, ये हो गया P0, P0 आपका है यहाँ पे 10, P1 है आपका 100, P2 है आपका 20, एंड P3 है आपका 5, 0 1 2 3। 4 भी P4 आपका है, सब इंटू कीजिए, P0 P1 P3, P0 P1 P3, 10 इंटू 100 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 5 के, ये हो गया आपका 5 के। फिर देखिए आपको एग्जाम में 5 के नहीं लिखना है, 5000 लिखना है, ठीक है ना। यहाँ हो गया 10 इंटू P2 हो गया 20, P3 हो गया आपका 5, तो ये हो गया आपका 100, 1 के, ये हो गया 1 के। तो आपका मिनिमम कितना हो रहा है, 15 के, मिनिमम आपका 15 हो रहा है इस स्प्लिट पे, इस स्प्लिट। तो 1 3 आपका के कौन कहाँ पे स्प्लिट करो, के इक्वल टू 1, और आपको 15 के मिल रहा है, आपको 15 के मिल रहा है। अब 2 4 का करते हैं, 2 4, M24, तो जब M24 का करेंगे तो मिनिमम कहाँ से हो जाएगा, 2 2 2, और 2 से 3, 2 से 3, तो जब 2 2 2 किए तो फिर ये 3 2 4 जाएगा, और ये 4 2 4 जाएगा, और यहाँ हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P4, यहाँ हो जाएगा P2 P1, 2 है तो 1 हो जाएगा, P1 P3
P4, है ना। तो मिनिमम ऑफ M22 0 है, 34 क्या है, 34 क्या है हमारा, सो 34 है हमारा 8 के। P1 हमारा क्या है, P1 है हमारा, P1 है 100, P2 है हमारा, P2 एंड P4 है हमारा, P2 है 20 एंड P4 है 8, 20 इंटू 8, 20 इंटू 8। 2 3 हमारा क्या है यहाँ पे, 2 3 है हमारा 10 के। देखिए ऐसे ही हम टेबल देख रहे हैं 10 के, ये है हमारा 10 के, ये हमारा 10 के, फिर ये 4 4 तो 0 हो गया, P1 तो 100 था, P3 आपका है, P3 आपका है 5 5 5, P4 है 8। तो ये हो गया आपका मिनिमम ऑफ, यहाँ हो गया 8 के, यहाँ हो गया 8 to 16, 16 और 000 मतलब 16 के, तो ये 16 के है, ये हो गया आपका 10 के प्लस 5 4 40, 40 और 20 4 के, आपका मिनिमम हो गया 14 के, मिनिमम हो गया। कहीं गलती हो रही है क्या, यहाँ 50,000 आया है, 10 इंटू 5 इंटू, यहाँ 80 है सर। अच्छा मैंने ये डायमेंशन लिखने में गलती कर दी है, ये 80 है, ये 80 है, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा 80 होने के कारण ये 40,000 हो जाएगा। एक मिनट, तो ये आपका हो गया, ये तो आपको वहाँ हमने P4 गलत लिख दिए थे, तो 8 to 16 हो गया, 16 पे कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, 1 2, ओके। तो ये हो गया आपका, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 इंटू 20 इंटू 80, ठीक है। तो इसे मैं 160 के हो गए, 160 के, 1,60,000 हो गया, 1,60,000 बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसका करते हैं, इसका हमारा हो रहा है 40, 8 5 40 फिर 3 जीरो, तो ये तो हमारा 40, ये 10 के था, ये 40 के है, मतलब 50,000 हमारा हो रहा, मिनिमम हो रहा है हमारा 50 के, है ना, 50,000। कहाँ पे स्प्लिट करें, 3 पे, तो k इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे हो गया आपका 50 के। इसी तरह आपको करना है, अगर आप बॉटम अप अप्रोच करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हमें करना है m इक्वल टू 1 4, m इक्वल टू 1 4। जब 1 4 आपको करना है तो आपको मिनिमम देखना है कहाँ से कहाँ, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 2, फिर 1 से 3, 1 से 3। अब 1 से 2 गए हैं तो ये कहाँ से कहाँ जाएंगे, m 2 से 4 तक, फिर ये जाएंगे आपके 3 से 4 तक, फिर ये जाएंगे आपको 4 से 4 तक, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका P0 इंटू P1 इंटू P4, ये हो जाएगा आपको P0 इंटू P2 इंटू P4, यहाँ हो जाएगा आपको P0 इंटू P2 सॉरी P3 इंटू P4। तो मिनिमम, तो 1 1 मैं अपने नोटबुक से देख लेता हूँ, 1 1 0 है, 2 4 क्या है, 2 4 8,000 है, दैट इज 8 के। P0 आपका है 10, P1 है आपका 100 एंड P4 है आपका, P4 क्या है, P4 है 80, ठीक है। M12 क्या है, M12 है आपका 20 के, M34 क्या है आपका 8 के, फिर इसको इंटू करेंगे P0 इंटू करके, P0 आपका है 10, फिर P2 है आपका 20, फिर P4 है आपका 80, ठीक है। अब 1 3 यहाँ पे क्या है, 1 3 आपका है, 1 3 है आपका 15 के और 4 4 तो 0 है, P0 है आपका 10, P3 है आपका 5 5, P4 है 80।
सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 8 1 2 3 4, 4 जीरो, 3 4 3 4, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4, ये 80K हो गया, 80K, और ये प्लस 8, 88K हो गया, 8K हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 16 हुआ। ये कितना हो जाएगा? 16, फिर कितना जीरो है? 3 जीरो है, तो ये 16K हो गया, 16K प्लस यहाँ 28K, तो ये क्या हो गया? 8 6 40, इन हैंड 1 3 4, 44K हो गया, ये 44K हो गया। और इसको करेंगे हम तो 8 5 40, तो 8 5 क्या हो जाएगा? 8 5 40 और 2 जीरो, तो ये 4K हो गया, 4K एंड 15K हो गया आपका 19K। आपका मिनिमम तो 19K हो गया, इसलिए आंसर आपका 19K आता है। और स्प्लिट आप कहाँ कर रहे हो? 3 पे। स्प्लिट आप कहाँ कर रहे हो? 3 पे। तो स्प्लिट आप 3 पे कर रहे हैं, a इक्वल टू 3, और इसका हो गया आपको 19K मिनिमम। देखिए क्लियर है कि नहीं बताइए, किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं, उम्मीद है सभी को क्लियर होगा। क्लियर है कि नहीं बताइएगा सब कोई। तो मैं दोनों मेथड बता दिया, बॉटम अप अप्रोच भी हम बता दिए, फिर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिसको आता है बॉटम अप या डायनेमिक तो क्या हुआ, पैरामीटराइजेशन तो सभी को आते हैं ना। तो सेशन को क्लोज कर देते हैं।